Good morning to everyone. I am starting conic section whose first chapter is parabola. I had told you earlier also for straight line and for circle also that any curve, any path is made after the movement of a variable point, and we do write xy. Here also in parabola I shall be plotting the movement of a variable point. It is said, it is defined that conic section is a curve obtained by the movement of a moving point, say xy, such that its distance from the fixed point and the distance from the fixed line is in constant ratio, and that constant ratio is called eccentricity, denoted by E. So I am just plotting one point P here having coordinate xy, and it moves such a way, look here, it is moving such a way that its distance from the fixed point and from the fixed line is in constant ratio. Look here, the P, the S, that is fixed point, and here the fixed line is here. Say I am taking not AB, is one line fixed, and this point is moving such a way that its distance from the fixed point and the fixed line will be in constant ratio. I just make it here and make it here. The distance of this point from the fixed point and this point from this fixed line is in constant ratio. I mean to say, if it is M, here I wanted to say that PS upon PM is constant, that is called eccentricity, denoted by the letter E. Again I am telling you, a point moves such that its distance from the fixed point and the fixed line, they are in constant ratio, that is E. For parabola, E equal to 1. Ellipse, E is less than 1, and hyperbola, E is greater than 1. So we are together starting, but we cannot start together. First I am going to start parabola, then ellipse, then hyperbola, but the curve formation I am making you clear. If PS upon PM is less than 1, that is E less than 1, we call ellipse. If it is greater than 1, that graph will be made hyperbola, that is will be called hyperbola. If E equal to 1, then parabola. If it is 1, and therefore we can say PS equal to PM. Please don't criticize.
I have made the figure 100 times. I have made the figure. It hardly makes problem for me. Even in the books I am finding this PM is not, we are getting PM. अब ऐसा फिगर बनाऊं मैं, कैसे बनाऊं ताकि PS PM हमेशा देखा? Not possible for me. Even sometimes I have seen all the books, यहां पर देख रहा है, लेकिन एक जगह पर मैं अलर्ट हूं और वो बनाते वक्त था, that is A here. The same point P is moving and reach to A. तो कहीं भी वो घूमे पॉइंट, उस घूमते हुए पॉइंट का जहां भी रुके, ठहरे, वहां से इस पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट की डिस्टेंस और फिक्स्ड लाइन की डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए. सो आई एम मोर कंसर्न टू A. ऑफ कोर्स आई शैल बी ऑल्सो कमिंग फॉर द पॉइंट P. तो मेरा कहना है, अगर कोई पॉइंट ऐसा घूमे कि वो कर्व ऐसा बनाए कि उसके हर पॉइंट से S की डिस्टेंस, यानी फिक्स्ड पॉइंट की डिस्टेंस और फिक्स्ड लाइन की डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहे. दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस. This fixed point. So I am rubbing it. Now I am not going to teach you here ellipse and hyperbola. Afterwards, then this S is focus. And say here I am taking Z. Then ZM line, any fixed line, is called directrix. This AS line is called is axis of the parabola. एक्सिस हो तो क्या, एक्सिस समझ जाएंगे, पैराबोला की चर्चा हो रही है. We draw a line through A perpendicular to axis. This is the line. ए बेचारा हत्या हो रही है, मैं यहां लिख दे रहा हूं ए. दिस इज ओरिजिन. Normally what we shall be taught, A is origin, but not even while I'll be teaching, then also I shall be changing sometime. But for the standard result, this A is 0 0. This should I write here? A is 0 0. Your attention will be here, this point. And AS is A, small a. So this coordinate will be A0. और ये A होगा ही होगा. क्यों होगा? क्योंकि हर पॉइंट जो घूम रहा है कर्व पर, उससे फिक्स्ड पॉइंट यानी फोकस की डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होना है, इसलिए A. So Z point is minus A0. ना? Z point is minus A0. Equation of I think this I should rub it now. काम बन गया इसका. तो कुछ हम रिजल्ट्स आपको दे रहे हैं. वो रिजल्ट्स, उसकी पहचान जरूरी है, उसका नाम दे रहे हैं तो बीच में नाम ही मत भूल जाइएगा, फिर पैसे पहुंचिएगा उनके पास. इसलिए आपको नाम याद रखना है. हियर ए वर्टेक्स ए द वर्टेक्स. नहीं यार, अच्छा नहीं बन रहा है. वर्टेक्स पहले लिख दे रहा हूं. वर्टेक्स ए हैविंग कोऑर्डिनेट 0 0. क्यों? क्योंकि उसी से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जा रही है. Focus S is here A0. The point Z is minus A0. Direct equation of directrix
Directrix. This line directrix you can very well understand. This directrix is parallel to y-axis and at distance a negative direction. Therefore, this is x equal to minus a or x plus a equal to 0. ये भी हो सकता है. अब क्यों यहाँ पर घुसाए जी ये है? पहले मैंने सोचा था को लिखा हुआ है तो ऐसे. अब मैं z भी ना बार बार नहीं बताऊंगा, ये मान के चलूंगा कि फिगर आपके दिमाग में है और आप कहां z, क्योंकि एक बार एक फिगर बना लिया तो मेरे लिए अच्छा है. आई शैल गो विद दैट. For the parabola, my dear children, this is xy. Why xy? Because the variable point. X or y may have any value. Look here, the same xy after moving and traveling from P to A, this A is not xy, but A is 0, 0. So I tell you कि ये moving point है. तो according to condition, PS equal to PM, PS equal to PM, and therefore PS is what? X minus a whole square plus y minus 0 whole square is equal to the distance formula, the perpendicular formula. This is x plus a equal to 0. I have written there also. X plus a equal to 0, then that is x plus a upon under root 1 square plus 0 square. ये फालतू लग रहा है लिखना, लेकिन मैं इसलिए लिख दे रहा हूं कि आप जानते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट x1 y1 टू एनी लाइन ax plus by plus c equal to 0. ax1 अकेला x है बेचारा, ये नहीं है इसलिए रह दिया, प्लस बी y1 y1 एब्सेंट, y एब्सेंट है और 0 है वो नहीं रहेगा, प्लस a उसका हाई है अपान अंडर रूट ये 1 है x का कोफिशिएंट, y का है नहीं, एंड देयरफॉर दिस इक्वेशन इज कमिंग x माइनस ए होल स्क्वायर. यानी पाथ मिल रहा है हमें, लोकस मिल रहा है. लोकस आपको कठिन लगता हो छोड़ दीजिए, अभी कोई लोकस की बात नहीं. वो पाथ मिल रहा है, उसको हम बार बार कह रहे हैं कि आई शैल यूज मैथमेटिकली लोकस. देन हियर आई एम राइटिंग दैट इज इक्वल टू, अब चाहे तो नीचे थोड़ा एक लाइन लिख सकता हूं, x इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, नो एक और गलती किया हूं बेटा, एक और गलती किया हूं, छोटी सी गलती. ए यहां डिस्टेंस तो ये होगा ना, सो आई एम टेकिंग एट द टॉप दैट इज x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस ए होल स्क्वायर. And this I am getting, I will be writing all these separately. Here I shall make the chart. So before that मैं समझता हूँ कि ये इसको थोड़ी देर के लिए मिटाना ठीक ही है. कहाँ तक एक ही बोर्ड में सब शामिल करूँगा. And then we are getting y square equal to x plus a whole square minus x minus a whole square. स्क्वायर कर दिया दोनों साइड से, एंड देयरफॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. ये हमको मत तंग करेंगे कैसे आया. अरे यार x प्लस ए होल स्क्वायर तो फार्मूला ही होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4ab. नहीं है तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन x प्लस ए प्लस एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस ऑफ एक्स माइनस ए, वो भी नहीं है, खोल दो और तब आ जाओ. तो कुल मिलाकर के y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. Now this is the standard formula of the parabola. Y square equal to 4ax, standard formula.
स्टैंडर्ड फिगर, स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट्स। अगर मैं कहूं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, आप तुरंत कहेंगे ये वही ना है इक्वेशन पैराबोला का जिसमें वर्टेक्स है 0 0, सॉरी, फोकस इज, वर्टेक्स इज 0 0, फोकस इज a0, डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस a इक्वल टू 0, और कंडीशन क्या था, ps स्क्वायर इक्वल टू pm स्क्वायर। वाई ps स्क्वायर इक्वल टू pm स्क्वायर, क्योंकि बराबर अंडर रूट में रहेगा तो अच्छा है, स्क्वायर हम लोग समझते रहे। तो कंडीशन इज एज ps स्क्वायर इक्वल टू pm स्क्वायर। ये मेरे लिए बहुत ही जरूरी होगा। तो y square equal to 4ax, what is the vertex? 0 0. What is the focus? a0. What is the directrix? What is the directrix? x plus a equal to 0. What is the variable point? pxy. The focus, the distance from a vertex to focus, this is called vertex. From distance from vertex to focus is the distance from vertex to the directrix. I did ps square equal to pm square. I got the sundar result, y square equal to 4ax. आप कहेंगे सर बराबर ऐसा ही आपका पैराबोला रहेगा। नहीं रह सकता है। अगर मैं बिल्कुल यही काम थोड़ा सा टिल्ट करूं और कहूं कि नहीं, आपका पैराबोला ऐसा भी हो सकता है। लुक हियर, ऐसा भी हो सकता है। ये भी लाइन डायरेक्ट्रिक्स हो सकती है। ये पॉइंट ए हो सकता है। यहां पर एस फोकस हो सकता है, जहां पर कि ये क्या होगा 0a, वाई वाई वाई, बिकॉज योर एक्सिस इज हियर, axis is here and this is y axis. तो y है a, लेकिन x वैल्यू y एक्सिस पर 0, so 0 है। दिस विल बी ऑफ कोर्स 0 0, x एक्सिस y एक्सिस मीट कर रहा है। दिस विल बी पैरेलल टू x एक्सिस एंड एट डिस्टेंस माइनस डायरेक्शन। सो देखो ये लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स है, जो z पॉइंट है, एंड हियर m पॉइंट p s, और यहां जैसे मान लो m रखा, तो आप यहां पर क्या कहेंगे, सर आप वर्टेक्स तो 0 0 रखेंगे। क्यों रखेंगे? बिकॉज द ओरिजिन, बिकॉज x एक्सिस y एक्सिस मीट कर रहा है। लेकिन डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? दिस इज पैरेलल टू x axis, so y equal to how much distance? a, so y equal to minus a। क्यों? क्योंकि माइनस साइड में है, प्लस साइड y का उधर है। और इसको भी फिर ps स्क्वायर इक्वल टू pm स्क्वायर निकालेंगे ना, तो आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। बिल्कुल उसी मेथड से करेंगे, तो आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो फॉर द इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द पैराबोला, what will be the vertex? 0 0. What will the focus? 0a. What will the directrix? y plus a equal to 0. What will be the condition here? Again ps square equal to pm square. S is the focus. एक और पॉइंट मैं बता दूं, एक और नाम आएगा, उसको भी यहां पर कर लूं। मैं फिर से बढ़िया ढंग से एक चार्ट बना दूंगा आपके लिए अभी। और मोर ओवर ये जो लिखा हुआ है ये तो आपको मिलना ही है। ये तो वीडियो है, इसलिए वीडियो यू आर गेटिंग ऑलवेज। ना 1 पॉइंट लेटस रेक्टम,
latus rectum is called alert, right? Latus rectum is called the line segment passing through focus perpendicular to x-axis. If it is here L and L dash, then length of latus rectum is LL dash. मैं शॉर्ट में, दैट इज लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम लिख दे रहा हूं यार, क्योंकि दो दो लिखना है ना शॉर्ट में. लेटस एल एल डैश इज इक्वल टू आई डोंट नो, आई डोंट नो एल एल डैश का लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा. तो आप कहेंगे कौन सी बड़ी बात आप कर रहे हैं क्या सर? इक्वेशन ऑफ एल एल डैश इज इक्वेशन ऑफ एल एल डैश. अब हमारे बच्चे के सबके हाथ खड़े हो जाएंगे. एल एल डैश इज यस पैरेलल टू वाई एक्सिस, parallel to y-axis at distance a, that is x equal to a. Parallel to y-axis and at distance a is x equal to a. क्योंकि इधर आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले parallel to y-axis but at distance a, but what? निगेटिव साइड में, निगेटिव साइड है, इसलिए x equal to minus a, x plus a equal to 0 I have written. एंड आई हैव टू फाइंड एल एल डैश और उनके बीच का डिस्टेंस निकालूंगा. इक्वेशन, हां, देन पॉइंट सब बता दिया बच्चों को. इंटरसेक्शन ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x इक्वल टू a, वी आर हैविंग वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 a स्क्वायर. देखो x इक्वल टू a रख दिया, 4 स्क्वायर, दैट स्पीक्स y इक्वल टू प्लस माइनस 2a. y स्क्वायर इक्वल टू 4ax स्क्वायर, देन y इक्वल टू प्लस माइनस 2a. दो वैल्यू y की है तो होगी भी. यहां देखिए, यहां पर y की वैल्यू यहां पर a और यहां पर 2a, सॉरी 2a, और यहां पर माइनस 2a, माइनस 2a. x की वैल्यू क्या है? अरे बाबा, x तो हमेशा हमेशा a ही है ना, ये a है तो यहां भी ये होगा, यहां भी होगा. सो इसलिए x इज a, तो मैं कह सकता हूं a 2a, और ये कोऑर्डिनेट्स इसके एल एल डैश के, दैट इज a 2a, a माइनस 2a. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल एल डैश आर a 2a and a minus 2a, a minus 2a. Then what is the distance LL dash? डिस्टेंस फॉर्मूला, या कहिए कि क्यों आप डिस्टेंस पर जा रहे हैं. सिंपल सी बात है, ये है L प्लस 2a और ये है डिस्टेंस माइनस 2a. कोऑर्डिनेट्स में डिस्टेंस तो हमेशा ही प्लस होगा. सो एल एल डैश इक्वल टू 4a. तो ये भी जानकारी हमको हो गई कि वी आर हैविंग लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इज 4a. एक्सट्रीमिटीज ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एल एल डैश आर a 2a एंड a माइनस 2a. कभी कंजूसी करूंगा तो मैं ये भी लिख सकता हूं a प्लस माइनस 2a. एक और वर्ड बता दे रहा हूं, डबल ऑर्डिनेट्स. डबल ऑर्डिनेट्स आर ऑल दोज लाइन्स
which are perpendicular to the axis of the parabola. All the lines, सभी इसको कहते हैं डबल ऑर्डिनेट. सुन लीजिए, डबल ऑर्डिनेट इज व्हाट? दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला. तो आप कहेंगे सर तब तो एल एल डैश भी डबल ऑर्डिनेट हुआ, जिसको आपने लेटस रेक्टम हुआ ना. एल एल डैश भी डबल ऑर्डिनेट है, ये भी डबल ऑर्डिनेट है, ये भी डबल ऑर्डिनेट है, यहां भी डबल ऑर्डिनेट है. उन डबल ऑर्डिनेट्स में जो एल एल डैश है वो एक ही लाइन है जो परपेंडिकुलर तो होते हुए भी फोकस से जा रही है. इसलिए डबल ऑर्डिनेट्स का वो जो डबल ऑर्डिनेट्स में एक लाइन है जो फोकस से जा रही है, देयरफॉर वी शैल कॉल द लाइन ऑल द डबल ऑर्डिनेट passing through focus perpendicular to the axis will be called letters rectum. So my dear boys and girls, I just make a chart as I was telling you. थोड़ा सा देख लिया जाए और उसके बाद मेरे पास दो ही फिगर रहेगा. मैं जनरली बुक्स में आपको 4 फिगर मिलेंगे, लेकिन आपको हम 2 ही फिगर जनाएंगे और हम बताएंगे उसके लिए ट्रिक कि अननेसेसरी जरूरी नहीं है. यू कैन गो विद दैट. लुक हियर, हियर इट इज y square equal to 4ax and here it is x square equal to 4ay. ये दूसरा जो मैंने बताया था, ये फर्स्ट मैंने बताया था. अब मैं बताने जा रहा हूं कि यहां पर एक एक पॉइंट बताने जा रहा हूं. सो दैट फर्स्ट वर्टेक्स, हियर इट इज 0 0, हियर ऑल्सो 0 0. फोकस, दैट इज a0, हियर इट इज. जब y का उसका एक्सिस होगा ना, तो देखो y ले रहा है. थर्ड डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज x प्लस a इक्वल टू 0, हियर y प्लस a इक्वल टू 0. आपको याद होगा ऐसा हमारा था ना, y एक्सिस में ये था, इसलिए सब y इंपॉर्टेंस होगा, y डोमिनेटिंग होगा, y की दादागिरी चल रही है. लेटस रेक्टम की लेंथ नहीं, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, दैट इज हियर x इक्वल टू a, हियर y इक्वल टू a. सब जगह हुआ, उधर y की दादागिरी, यहां x की दादागिरी. लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, ये कुछ नहीं, ये 4a, ये 4. क्यों? इसमें जहां डिस्टेंस है वहां एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का क्या मतलब है? कैसा कैसा a बन गया है, 49 दिख रहा है. a 4a एंड कंडीशन इज, कैसे हमने पैराबोला का इक्वेशन पूछा? PS स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर. वो PS इक्वल टू PM से चलेगा, लेकिन मैं खुश इस पर रहता हूं PS से, क्योंकि हर जगह अंडर रूट आएगा. एक ही बार हमारे दिमाग से हो कि PS स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर. माय डियर चिल्ड्रन, यू कैन से इन बुक्स इट इज रिटन 4 फिगर्स कैन बी मेड. कैसे? कि अगर मान लो A माइनस है, तो जो आपका पैराबोला ऐसा बन रहा है वो पैराबोला इधर होगा. उसमें अगर a माइनस है, तो जो पैराबोला आपका इधर वर्टिकली मूव कर रहा है अपवर्ड, देन दैट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड. सो a माइनस होगा तो प्लस होगा, तो केवल एक ही बात हमारे दिमाग में ध्यान रखनी है कि यह इसका जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है या एक्स एक्सिस के पैरेलल ही होगा. आपके कोर्स ही में यही है, आइदर एक्स एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आइदर वाई एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो मैं कुछ और दूंगा आपको. अभी आई एम नॉट कमिंग हियर ऑन द डिस्प्ले बोर्ड.
आई एम नॉट कमिंग, आई शैल बी कमिंग पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन कुछ और बातें हमारे दिमाग में हैं, इसलिए उसको भी हम लिख दे रहे हैं। इसको भी मुझे लालच लग रही है, लेकिन क्या करेंगे, हैं हम लोगों का जिंदगी भर का काम ही बोर्ड का है, तो लिखना और मिटाना है, ये तो है ही है। कहाँ तक ये मैं बता रहा था, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला parabola. First is parabola having axis, x-axis तो आपको लिख दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4a। लेकिन अगर हम एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस, इस सब बीच में हम आपको घर से खाना वाना बना के दे रहे हैं पूरा, ताकि रास्ते में कुछ ना जरूरत पड़े, पैरेलल टू x एक्सिस एंड वर्टेक्स 0 0 नहीं बल्कि h के, लेकिन एक्सेस के पैरेलल होना चाहिए, यह बात जरूरी है। आप कहेंगे कोई, तो मैं नहीं बताऊंगा, तब उसके लिए दूसरी चीजें बताऊंगा। देन दैट विल बी, क्या करेगा, माने वर्टेक्स ट्रांसफर हो गया है एच के पर, वर्टेक्स अभी 0 0 नहीं, वर्टेक्स को भगा ले गया है, लेकिन उसको सीधे एक्सेस के पैरेलल, तो कहेंगे y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स दिस a x माइनस h। Similarly, equation the parabola having its axis parallel to y axis, मैं इक्वेशन ऑफ द पैराबोला यहां नहीं लिख रहा हूं, कह रहा हूं एक्सिस parallel to y axis, of course vertex is hk, देन अगेन आपको याद करिए कि कैसा आपका इक्वेशन रहा था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, नहीं, x माइनस एच ट्रांसफर कर रहा हूं, x माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस के। आप लोगों के कोर्स में ट्रांसफर ऑफ एक्सिस नहीं था, इसलिए हमने नहीं बताया था। x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस के, दिस इज ऑल वी हैव टू रिमेंबर इट। What will be there in our course? Either axis is parallel to x-axis or on x-axis. Either to y-axis, either y-axis or parallel to y-axis. So, अगर मान लीजिए x-axis के पैरेलल है और h के 0 0 हो जाएगा वर्ट के, तो हो गया ना वर्ट इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। मैंने क्या कर दिया कि उसका 0 0 की जगह पर h के डाल दिया। And this is all about, no, many of the things more, but I shall be coming on the way, and let me come to the display board. हो सकता है कि वही जो मैं बताया हूं वही सब होगा, वही होगा, और कहां से जाएगा उसको। हाँ, पहले तो उसका डिफिनीशन दे रहा है, मैं नहीं चाहता हूं, लिखा पढ़ दे रहा हूं। अ कॉनिक सेक्शन or conic is the locus of a point P such that its distance from a fixed point, that is focus मैंने कहा था, to its distance from the fixed line bears a constant ratio. The fixed point is called the focus and is generally denoted by S। फिर उसके बाद उसने डायरेक्ट्रिक्स का बात कहा था, E equal to 1, इसको भी तो यूज कर ले भाई, इसको यूज कर देखो। फिर उसके बाद से ये पैराबोला लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, ये सब है। उसके बाद से फिर क्यों कह रहा है, एंड फिक्स स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डायरेक्शन। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बेटा वो सब समझा दिया हूं, y स्क्वायर इक्वल टू 4। देखो इसने भी z लिया है, इसने भी s लिया है, यहां पर m लिया, जनरली लेते हैं लोग,
इसलिए हमने भी कर दिया। और ये जो P है यही वेरिएबल पॉइंट है, और ये PS इक्वल टू PM पैराबोला में। एंड देन नेक्स्ट एंड देन वी आर कंसिडरिंग वो सब हाउ हैव वी गॉट, आपको अच्छी तरह याद है, सब मैंने समझा है। एंड PS स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर, ये सब 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 सब, और वी आर गेटिंग y स्क्वायर विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। एंड इन्होंने बोल ही दिया सब जो मैंने बताया था, सब 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 इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला दैट इज y इक्वल टू 0। ये जो हमने बताया था कि वो x एक्सिस है इसलिए y इक्वल टू 0। लेटेस्ट रेक्टम ये सब बता दिया इन्होंने। मैं देख रहा हूँ कि गड़बड़ तो नहीं लिखा है। द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ए पैराबोला इज द कार्ड पास, बिल्कुल कार्ड है क्योंकि पैराबोला के दोनों हेड्स को मिल रहा है, पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द आर्क। एंड फोकल डिस्टेंस नहीं बोला था, द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम एनी वेरिएबल पॉइंट इज कॉल्ड, द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम एनी वेरिएबल पॉइंट इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। और इन्होंने बता दिया कि देख लीजिए x प्लस a है, मैंने चर्चा नहीं किया, फोकल कार्ड हो गया y। और उसके बाद से देखे द स्टैंडर्ड फॉर्म, अरे रे रे हमने जो काम किया अच्छा अच्छा इन्होंने लिखा, अच्छा ही है, पहले समझ लिए। चलिए नेक्स्ट, हाँ देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वर्टेक्स इज हियर 0 0, यहाँ भी 0, a 0 0 a, x इक्वल टू माइनस a, y इक्वल टू माइनस a, या x प्लस a इक्वल टू 0, y प्लस a इक्वल टू 0, x एक्सिस है, y इक्वल टू 0, ये y एक्सिस है, सो x इक्वल टू 0, टेंजेंट एट वर्टेक्स यानी y एक्सिस है, सो इक्वेशन लिख दिया x इक्वल टू 0, यहां पर x एक्स है, सो y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम x इक्वल टू 0 बता चुका हूं। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 4a, एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम आपको समझा चुका हूं, a प्लस माइनस 2a, ऐसे ही प्लस माइनस 2a हो जाएगा। फोकल डिस्टेंस इज a प्लस एक्स, a प्लस वाई, एंड कोऑर्डिनेट्स ये जो है ये यहाँ पर दिस इज एन अदर फॉर्म 80 स्क्वायर 280 280 80 स्क्वायर, दिस आई हैव नॉट टोल्ड यू। और जब क्वेश्चन आएगा तो नॉट नथिंग कुछ भी देयर। एंड सॉल्व द एग्जांपल्स, सॉल्व एग्जांपल्स। आई एम हैप्पी जनरली जो क्लासेज होते हैं कस कुस करके भी लिए जाते हैं इन द क्लासेज, हार्डली 35 मिनट्स और 30 मिनट्स अगर ठीक से लें टीचर्स तो। And here you are listening me, rather I am making you bore for around 1 hour 15 minutes, 1 hour 20 minutes minimum. So my dear, here I am taking it, then solve example. मैं आऊँगा बोर्ड पर आऊँगा क्योंकि मैं बोर्ड पर हो सकता है मेरा मेथड और भी थोड़ा अच्छा हो। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज 3 minus 4 and directrix is x plus y minus 2 equal to 0, and find the latus rectum and the equation of its axis. Look here, the focus is 3 minus 4 and directrix is, तो आप जानते हैं सर ये तो आपने बताया था कि इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विल बी PS स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर। करेंगे, ये लिखे हैं, ये थोड़ा और कर दिया गया, यहाँ PS इक्वल टू PS लिखा, SP या PS एक ही बात, इक्वल टू EPM, बट ईच वन, सो ऑलवेज आई विल से दैट PS स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर, यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, कोई जरूरत नहीं है आपको लिखने का, आप सीधे सीधे स्क्वायर कर देंगे और काट पीट करके बेटा ये इक्वेशन आ गया, इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ द, हाँ। एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इंटू 2 इंटू लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ये तो बहुत सही बात है। 2 इंटू द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, देखो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, हाँ लेंथ कोई बात नहीं, हाँ लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इक्वल टू ट्वाइस इंटू द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन डायरेक्ट्रिक्स। ये फिगर नहीं बनाया है, थोड़ा सा मैं समझा ही दे रहा हूं क्यों हमारे बच्चे, ये इंपॉर्टेंट होगा, मैं देखूंगा। गाइडेंस तो मेरा ही है मेरे बनाने के लिए, लेकिन आई हैव गिवन दिस वर्क टू अदर्स, तो कभी कभी क्या होता है उनकी अपनी बुद्धि चलती है, अच्छा ही है, चलना भी चाहिए, नॉट बैड। मैं कह रहा था एक फिर से जरा पैराबोला बना दूं, अगेन आई शैल डू इट, आप याद करिए, हाँ कि दिस वाज हियर P
और यहां पर ये एस था, तो मैं ये कह रहा हूं ए और ये जेड है, आप याद करिए। तो ए एस इक्वल टू ए और ए जेड इक्वल टू ए, लेकिन लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम दैट इज इक्वल टू 4a। तो कह रहा है एस से आप अब एक दिमाग में हमेशा लगा लें कि लेटेस्ट रेक्टम नहीं तो कहां से निकालता 2a 4a। तो कह रहा है आप क्या करिएगा, जब कभी भी फोकस दिया रहे और डायरेक्ट्रिक्स दिया रहे तो एस से उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल करके, फार्मूला कौन सा है याद करिए, किसी लाइन पर किसी पॉइंट से डिस्टेंस ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एस से दैट इज a0 और इस पर डिस्टेंस, तो ये 2a होगा ना, उसका डबल क्या होगा 4a। और वर्टेक्स दे दे और डायरेक्ट्रिक्स दे दे और कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, तो वर्टेक्स से आप डायरेक्ट्रिक्स पर आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे एंड यू विल से 4 टाइम्स बिकॉज की एल एल डैश इक्वल टू 4a, दैट इज द सेम टोल्ड हियर। यस नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, हाँ ठीक है। एक्सिस ऑफ द पैराबोला, हाँ वो वहां से है। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, ये देखो लेंथ ऑफ द ट्वाइस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, परपेंडिकुलर निकाला और देन 3√2। एक्सिस ऑफ द पैराबोला is the line through 3 minus 4 and perpendicular to this डायरेक्ट्रिक्स। तो क्या होगा, वो स्लोप करते हैं हमारे बच्चे, मैं वो लैम्डा वाले मेथड से मैं उसको देख ले रहा हूँ थोड़ा सा, लैम्डा वाले मेथड, मुझे लैम्डा वाला मेथड आसान सा लगता है। हमारे बच्चे मैंने उसको बिल्कुल आप आगे करिए, लैम्डा वाले मेथड कर रहा है। आप ये तो जानते हैं, हाँ, what is given there here, the parabola is through 3 minus 4 and perpendicular axis of the parabola, फिर से भी कर बनाऊं क्या, axis of the parabola and through focus and perpendicular to the directrix। एक मिनट फिर से बना दे रहा हूं, कौन सी बात है, कौन इसका बड़ा मेहनत है। हाँ, और ये कह रहा है कि आप फोकस इसका 3 minus 4 है, तो axis is axis of the parabola is through focus and through 3 5 4 and perpendicular to the directrix। Directrix was already given x minus y minus 7 equal to 0। मैं कह रहा था मैं क्या करूंगा कि इससे वो जा रही लाइन और परपेंडिकुलर, तो तुरंत कहेंगे सर आप लिख दीजिए ना x प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा। क्यों लिख दूं, एक्स वाई अपनी जगह पर रहेगा लेकिन उनके कोफिशिएंट इंटरचेंज होंगे। अब 1 1 ही है तो क्या इंटरचेंज करूं, लेकिन अगर प्लस है तो माइनस माइनस है ये, बट इट पासेस थ्रू 3 minus 4, तो चलो 3 minus 4 इक्वल टू लैम्डा, सो दैट इज इक्वल टू -1। इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू -1। कहीं होगा, कोई होगा, अरे 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 क्या दे दिया, इक्वेशन ऑफ द कहां से इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, रुक जा थ्रू 3 minus 4 and perpendicular to, हाँ तो -4 ना, 3, ओहो x प्लस वाई -4 है बेटा, ये -4 है, मैंने 4 कर दिया है, तो 3 माइनस x प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा, नहीं यार हियर एक मिनट और भी गलती, x कुछ गलती है, x माइनस वाई हियर, एक मिनट बेटे हम देख रहे हैं कि ये तो गलती नहीं, या मेरी गलती हो सकती है। एक्सिस ऑफ द पैराबोला थ्रू 3 minus 4, वो तो बाद में यूज करूंगा, परपेंडिकुलर टू x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, नहीं x प्लस वाई तो x माइनस हो जाएगा ना, साइन चेंज करेंगे, वो मैंने बताते या बोलते भूल गया, x माइनस वाई इक्वल टू लैम्डा बट 3 minus 4 एंड दैट इज इक्वल टू 7 एंड हियर द आंसर। यानी बराबर जब किसी भी लाइन के पैरेलल चाहिए तो सेम एक्स वाई रह करके इक्वल टू लैम्डा,
और अगर परपेंडिकुलर चाहिए तो एक्स वाई तो वहीं रखो, लेकिन उनके कोफिशिएंट्स इंटरचेंज करो, प्लस है तो माइनस, इसलिए ये प्लस था, ये प्लस पता नहीं हमारे पिक्चर में आएगा कि नहीं, ये रेड पॉइंट नहीं आएगा। तो x माइनस वाई -7, ये ऊपर है, ओ मैं यहां पर देख लिया, x प्लस वाई -2 = 0, सो x माइनस वाई इक्वल टू लैम्डा पासिंग थ्रू 3 - 4 एंड देन द नेक्स्ट। बहुत जल्दी मैं करूंगा, इसे बहुत आसान तरीके से मैं करूंगा। हाँ, फॉर द फॉलोइंग पैराबोलास फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस एंड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, ये सब है, मैं तो अभी कर दूंगा। और वाइस हाँ, कहां ये चाक गिर रहा है भाई? अब जरा सा उसको मैं थोड़ा सा बोर्ड पर उनके क्वेश्चन करूं, क्योंकि बच्चे तुरंत नहीं समझ पाएंगे। What is asked there? Hope my children are able to understand. Question is y square equal to 16x. Y square equal to 16x. Y square equal to 4ax. So what is a? What is a? 4. 4ax. 4 into 4x. So a equal to 4. And then what is written here? What it wanted? Parabola, find the coordinates of the focus and the equation of the directrix. तो फोकस क्या हुआ बेटा? फोकस इज 4 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या हुआ? x प्लस ए इक्वल टू 0, यानी x प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया होगा। हाँ, ये देखिए द नेक्स्ट इज वेयर 4x स्क्वायर प्लस वाई, 4x स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर इक्वल टू -1/4y, राइट। 4x स्क्वायर, मैं जरा सा उसका या तो हमारा इक्वेशन होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay में बना दिया, लेकिन 4a की जगह पर -1/4, देन a इज -1/16, तो जो चाहिए वो निकाल दो ना। व्हाट विल बी द, फिर कह रहा है ये क्वेश्चन फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स फाइंड द फॉर द, हाँ ये क्या चाहिए था? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एंड इक्वेशन, फाइंड द फॉलोइंग पैराबोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। यहां पर क्या होगा? यहां पर इसमें 0a, याद करिए, लिखा भी हूं मैं कहीं, यस फोकस इज हियर 0a, लेकिन a इज -1/16, so what will be the focus? 0 -1/16। ये कैसे पता चला कि सर ये वो तो दिया ही हुआ उसी टाइप का, x स्क्वायर 4x स्क्वायर इक्वल टू, ऐसा दिया हुआ आंसर आएगा। x स्क्वायर इक्वल टू 8y, ओरल चलू, x स्क्वायर इक्वल टू 8y, x स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2y, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2y, a इज 2, a is 2, लेकिन कौन सी शक्ल है? वो वाली, दूसरी वाली शक्ल है, ये देखो यहां, ये दूसरी शक्ल है, तो क्या हो जाएगा? 0 2, द फोकस, वो देखो फोकस 0a, लेकिन a is 2, सो डायरेक्ट्रिक्स इज व्हाट? हियर y प्लस a इक्वल टू 0, द y प्लस 2 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू -12y, x स्क्वायर इक्वल टू -12y, a इज व्हाट? अब समझ गए, -3, तो मैं क्या करूं? -3 0 लिखूं कि 0 -3 लिखूं? 0 -3, क्यों? इसकी शक्ल है वो टाइप, इसलिए द फोकस इज 0a, नहीं 0 -3, और इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या लिखूंगा? y प्लस a इक्वल 0, यानी y -3 इक्वल 0, खत्म, नॉट खत्म, मतलब इस टाइप से। नेक्स्ट सेट बोलूं भाई क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये सब करता जा रहा है, चलिए हमने कर दिया। हाँ, एक मिनट, जरा सा वो क्वेश्चन देख रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, तो हमारे बच्चे कहेंगे
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फाइंड द वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस ऑफ द फॉलोइंग पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। मैं क्या करूंगा बच्चों, ये जो है ना इक्वेशन, इसको खूबसूरत टाइप से बना लूंगा, चाहे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है। ये तो हमें दिख ही रहा है x स्क्वायर है, इसलिए उसी टाइप में जाएगा। कौन सा? ये दूसरा वाला टाइप। लेकिन उसके पहले वैसा शक्ल देनी पड़ेगी। आइए हम शक्ल देते हैं। शक्ल देते हैं। क्या शक्ल देते हैं? इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो मैं शक्ल दूंगा, जब x स्क्वायर है तो मैं कहूंगा y इक्वल टू, अब x में परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, जब x स्क्वायर है x में परफेक्ट बनाएगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3। एक मिनट बेटा, आप कहेंगे आप तो जल्दी जल्दी बना दिए। जहां भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो, हम जानते हैं कि ये -2 का हाफ कर दो, यानी -1, और x स्क्वायर है तो x, y होता तो y करते, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तो x माइनस 1 में क्या आ गया? x स्क्वायर आ गया, -2 आ गया, प्लस 1 नहीं है सर, तभी तो मेरा बच्चा -1 कर दिया, ताकि ना क्वेश्चन नाराज हो ना आप नाराज हैं, और प्लस 3 तो था ही। सो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2, या थोड़ा सा इधर देखते हैं तो x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 2। वही क्वेश्चन फिर से मैंने वैसा एक, उसका शक्ल सूरत नहीं होता है कि कोई ऐसा जा रहा है ड्रामा पर तो थोड़ा सा इधर करो, वैसा करो, ऐसा ये करो, तब जाकर के तो वो बनेगा। इसी तरह से मैंने किया। अब देखिए एकदम वही चीज है, लेकिन y एक्स माइनस स्क्वायर माइनस 2x1 यानी x माइनस 1 होल स्क्वायर, इसमें प्लस 1 एक्स्ट्रा आपने डाल दिया सर, तो -1 कर दिया, प्लस 3, यानी y इक्वल टू एक्स माइनस 1 स्क्वायर 3 माइनस 1 प्लस 2। फिर उसके बाद से थोड़ा सा x पहले लाए। क्यों सर आप x पहले लाए? y क्या बुरा था? अरे बेटा, हमने पैराबोला की दो शक्ल बोली थी, या तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसलिए x को हमने स्क्वायर फॉर्म में ले लिया। लेकिन ये आपको पसंद नहीं है। कितना बढ़िया अकेला अकेला एक्स वाई था, तो आप भी कर लो ना, ये बिग ऐसा लिख दो और उसके बाद से यहां पर कर दो y देखिए क्यों ऐसा किया? क्योंकि वहां पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 तो है ही नहीं। अरे नहीं है तो नहीं है, 1 तो इसके पास है ना। लेकिन व्हाट आई डिड हियर, एक्स माइनस 1 इक्वल टू कैपिटल एक्स एंड y माइनस 2 इक्वल टू कैपिटल वाई। आप कह सकते हैं सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1/4, ताकि आप हमारे बच्चों को अच्छा लगे। चलिए अब तो अच्छा है ना, अब तो अच्छा है ना। एक्स स्क्वायर के जगह कैपिटल एक्स स्क्वायर, प्लीज सी कैपिटल एक्स स्क्वायर, और यहां 1 था तो मैंने जानबूझ करके ना इक्वेशन 4a, y के पहले 4a है तो उस 4a के जगह पर 4 इंटू 1, अकेला 1 ही था, ये 1 था, इसको 4 इंटू 1/4। अब आप खुश होइए, आपका इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1/4 y। लेकिन दिमाग रखिएगा, जब मैं वापस आऊंगा आंसर के लिए तो आप जानिएगा कि बीच में मैंने x माइनस 1 की जगह पर कैपिटल x उधार लिया है और y माइनस 2 की जगह पर कैपिटल Y उधार लिया है, इसलिए खुश मत हो जाइएगा, हम बीच में बदले हैं, ठीक। इसलिए हम a क्या कहेंगे, a इज 1/4। अब उसमें जाओ, जो भी चाहिए वो जाओ, कहेंगे व्हाट विल द वर्टेक्स, आप कह देना सर 0 0। कहेंगे नहीं आपका तो वो बड़ा छोटा सा था। अरे यार फिलहाल मानो ना 0 0, क्योंकि फिलहाल हमने इक्वेशन ऑफ द पैराबोला ऐसे बना दिया है।
तो ऐसे बना दिया है। लेकिन आप कहेंगे सर वो कैपिटल एक्स कैपिटल होगा ना, लेकिन अभी फिलहाल हम नए वाले एक्सिस के अनुसार, नए वाले एक्स कैपिटल वाई के अनुसार इसका वर्टेक्स क्या होगा 0 0, इसका फोकस क्या होगा 0 1/4। नहीं, हाँ 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 हाँ, अरे 0 है तो क्या होगा, ए तो हमारा 1 लिख दूं क्या, हाँ 4 ये है ए इज 1/4। यहां होगा डायरेक्ट्रिक्स x प्लस ए इक्वल टू 0, हम लिख देंगे नो सॉरी y प्लस, कहां y प्लस ए इक्वल टू 0, नहीं जी, यहां पर लिख देंगे क्या कैपिटल Y। क्यों कैपिटल Y, अरे मैंने इक्वेशन की शक्ल बदल दिया है, हमारे अब ही कब्जे में है कैपिटल x कैपिटल Y, बाद में देखा जाएगा, इसलिए यहां पर ये देखो कैपिटल Y प्लस 1/4। इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम अगर लिखना है कैपिटल Y इक्वल टू 1/4। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ लिखनी है तब तो ना कैपिटल X है कैपिटल Y है, 4 इंटू 1/4 इसलिए 1, और बाकी सब ठीक है। अब चाहें तो आप इनकी बात समझें, इन्होंने लिखा होगा लेकिन मैंने अच्छा जब सब हो जाएगा तब कहिएगा आप जनाब, मान लो ये सब लिख दूंगा, वो क्वेश्चन में किया होगा इसलिए उसको भी मैं आऊँगा, उसमें लिखा होगा तो आप कहेंगे भैया आपने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, हमने यहाँ पर सब लिखा है लेकिन आप हैं नहीं, बीच में मैंने आपको दूल्हा बना दिया था, आप उतरिए, हम अपने ओरिजिनल दूल्हे को ले आ रहे हैं। तो ले आओगे, ये टेम्परेरी दूल्हा है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई दोनों हाथ उसके, लेकिन आप तो ओरिजिनल दूल्हे को आएंगे, भूलिएगा मत ओरिजिनल दूल्हा आपका घर से चला है, बीच में धोखा देने के लिए आपने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई बना दिया है। तो देखिए साहब यहां पर ये देखिए ये किया है बेचारे ने, ऐसे ही x माइनस 1 की जगह पर कैपिटल एक्स, y माइनस y माइनस 2 की जगह पर कैपिटल y, और ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला बोल रहा है ना, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला कंपेयरिंग उनसे किया तो a इज 1/4, मैं आपको बराबर बताता चल रहा हूँ। नेक्स्ट आप देखिए, जरा ऊपर आइए तो, हाँ अच्छा इतना ही पूछा है क्या, क्वेश्चन लाइए तो हम दुनिया भर का बता दी, खैर अच्छा काम दूसरे में चलेगा, नहीं किया नहीं उसने, वरना फोसाई वर्ड से डायरेक्ट्रिसेस एंड एक्सिस ऑफ द फॉलोइंग पैराबोला y इक्वल टू, किया नहीं इसने, तो अब कैपिटल, हाँ तो एक मिनट, अगर नहीं किया है तो मुझे करना पड़ेगा, देखो तो नेक्स्ट, तो मुझे करना पड़ेगा बेटा, इसने पूरा नहीं किया क्वेश्चन, इसलिए कोई बात, एक आध में कर दूंगा तो आपको समझ में आएगा। ये बेटा ये हटा दिया, उन्होंने पूछा है लेकिन किया नहीं इसने है, वो भी हमारे ही तरीका बिल्कुल आलसी है। अब ये देखिए, एक दो बता दूं, मान लीजिए वर्टेक्स है, वर्टेक्स है, खैर दोनों में है, मैं वर्टेक्स है, चलिए 0 0, ये कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल वाई है, यानी इसको कहेंगे कैपिटल एक्स को क्या माना था मैं भूल गया, कैपिटल एक्स को, अभी इसको भी मिटा दिया, कैपिटल एक्स माइनस, हाँ ये से एक्स माइनस 1 यहाँ किया है, वही मैंने किया था, x माइनस 1 को लिखा था कैपिटल x और कैपिटल और y माइनस 2 को हमने माना था, याद करिए यही किया था। तो आप कहेंगे सर ये तो आपका 0 0 तब है जब छोटा वाला x है छोटा वाला y है, आपने तो वर्टेक्स 0 0 कहा, लेकिन ये कि उस फार्मूले के अनुसार से ये होगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, हियर x माइनस, यानी कैपिटल x इक्वल टू 0 और कैपिटल x और कैपिटल y इक्वल टू 0, लेकिन कैपिटल x क्या है, x माइनस 1 है, तो कहेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, देन 1 to the vertex।
एक्स वाई जब स्मॉल लेटर्स थे तो 0 0 था, हमने अपनी सुविधा के लिए क्या कर दिया कि उसको बढ़िया बनाने के लिए ऐसा कर दिया। चलिए एक और कर दूं, फोकस। फोकस, आप कहेंगे सर ये फोकस के लिए आप A0 कहीं क्यों नहीं ले रहे? बेटा ऐसी शक्ल नहीं है आपके पैराबोला की। आपके पैराबोला की वो देखिए, ये देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, वाई स्क्वायर इक्वल टू नहीं है, तो हम उसका ये वाला ले लेंगे 0A। देन बस ये एक ही कर रहे हैं, बाकी आप करिएगा फोकस दैट इज 0A। यही फार्मूला होता है, यानी हमारा होगा 0 की जगह पर 0 और A की जगह पर हमने कहीं निकाला था 1/4। ये यानी ये है कैपिटल X और ये है कैपिटल Y। लेकिन क्या कैपिटल X ये तो भगा करके हटाया था ना, धक्के मार करके x-1 को धक्के दे दिया था, तो कहेंगे x-1 इक्वल टू 0। कैपिटल Y ने y-2 को धक्के दे किया दिया था, तो y-2 इक्वल टू 1/4, यानी x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 प्लस 1/4 यानी 9/4। तो क्या हो गया? अब स्मॉल x देखो स्मॉल y, तो अब क्या हो गया? फोकस था 0A यानी कैपिटल X कैपिटल Y, लेकिन हमें x स्मॉल x और स्मॉल y पर जाना था, इसलिए हमारा हो गया 1/9/4। ऐसे बेटा किया करेंगे। तो थोड़ा सा और इस पर भाषण दे दूं, मैं जान रहा हूं कि भाषण जरूरी है इसमें। हाँ, बंद करो, ऑफ करो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी यहां पर ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन। खुश हुआ मैं कि वर्टेक्स ओरिजिन, यानी हमारा जो पुराना इक्वेशन होता है उसमें वर्टेक्स ओरिजिन है। हाँ, एंड एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू 2 3 एंड 1 - 4। इसके लिए इन्होंने किया है 2 3 यहां पर किया है, मैं थोड़ा सा इसको, हाँ चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, नो थोड़ा नीचे, थोड़ा नहीं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। फिर से देखें, ये देखो y स्क्वायर इक्वल 4x क्या है? इसका एक्सिस तो x एक्सिस है, लॉन्ग x एक्सिस है, एंड इसका वर्टेक्स ओरिजिन है, लेकिन कह रहा है आपने जो यहां a लिखा है उस a को उसको पसंद नहीं आ रहा है, तो कह रहा है पासिंग थ्रू 2 3। पास करा दे ना भाई, दुनिया पास होना चाहती, तू ही पास करा दे, मीन्स यू सेटिस्फाई। वो सेटिस्फाई कर रहा है और आ रहा है a आ गया y स्क्वायर इक्वल टू 9/2x। हाँ, at what points parabola x square equal to 9y is the abscissa यानी y 3 times of the ordinate, abscissa यानी x। at what point of the parabola is parabola, प्यारा सा छोटू सा इक्वेशन है। उसके बाद is the abscissa यानी इसका x इसके 3 times of the ordinate है, यानी x equal to 3 times of the ordinate 3y। अब जब x इक्वल टू 3y रख देंगे, h के क्या है? h इक्वल टू 3k, नहीं तो x इक्वल टू 3y और रख दो तो x इक्वल टू 3y है। तो यहां अगर 3y कह दोगे तो 9y स्क्वायर इक्वल टू 9y, 9 को कॉमन लोगे तो y हाँ ठीक है ना, x इक्वल टू 3y ना, तो 9y स्क्वायर इक्वल टू 9y, 9 कॉमन लेंगे, पीछे निकाल देंगे y-1, और ये देखो और यहां पर y इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 1 h के ले लिया है, तो फिर वो k इक्वल टू 0, और इस तरह से इक्वेशन कोई बात नहीं है। ये फोकस, next question, 1 - 1 and 2 1 be the focus and vertex of the parabola। और ये उसके क्वेश्चन के, find the equation of the parabola whose focus is 1 - 1 and whose vertex is
2 1। बेटा ये जो है इसको मुझे समझाना पड़ेगा, तभी बात जमेगी। तभी बात जमेगी कि पहले मैं समझा दूंगा इसको। पहली बात माय डियर चिल्ड्रन, हमारा इक्वेशन ऑफ द पैराबोला था तब जब आइदर इट्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस और इट्स एक्सिस इज वाई एक्सिस। नहीं था तो एक्स एक्सिस के पैरेलल था या वाई एक्सिस के पैरेलल था। आपको याद होगा हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay दिया था शुरू में, और उसके ये तो दिया ही हुआ है, और नहीं तो मैंने कह दिया था अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो उसका एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल हो उसका एक्सिस, तो मैंने यहां पर एक फार्मूला लिखा था y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच। कब? जब इसका h के वर्टेक्स हो अब पैरेलल टू x, x एक्सिस नहीं है तो पैरेलल टू x, और नहीं तो x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस के। ऐसा है, यानी ये कब है? जब उसका एक्सिस y एक्सिस को हो लेकिन वर्टेक्स 0 0 ना हो। यहां पर उसका एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस है लेकिन वर्टेक्स 0 0 नहीं है। लेकिन भाई जब एक्सिस न तो पैरेलल टू x एक्सिस, न तो पैरेलल टू y एक्सिस, न x एक्सिस, नहीं y एक्सिस, तब उसके बाद हमको कुछ और करना पड़ेगा, वो देख रहा हूं। और ये देखिए निकाल लेता हूं पॉइंटर ताकि बच्चों को, फिर आई शैल बी डूइंग हियर ऑन द बोर्ड। सबसे बड़ा दर्द होता है कि ये इस पर चाक लग रहा है। हाँ ये देखिए इन्होंने एक्स, ऐसा मत सोचिएगा कि एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है ना। उसके बाद से ये कह रहा है क्वेश्चन, देखो हाँ, x1 माइनस 1 a21 बी द फोकस एंड वर्टेक्स ऑफ द। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चल गया, आपको कैसा पता चल गया कि ये पैरेलल टू x एक्सिस नहीं है या पैरेलल टू y एक्सिस नहीं है? मैं बेटा इसलिए पता लगा लेता हूं, अगर y सेम है, अरे इसी को कम करूं, अगर y सेम है तो m 0 होगा, और अगर x सेम है तो m इन्फिनिटी होगा। यानी अगर y सेम हो तो पैरेलल टू x एक्सिस, और अगर x सेम हो तो पैरेलल टू x एक्सिस। इन्होंने ना तो y वैल्यू सेम रखा है ना, हम आपको 10 क्वेश्चन यहां पर देंगे आइदर y इज सेम और x, लेकिन इन्होंने अलग कर दिया तो द एक्सिस। और उसके बाद से हम देखेंगे क्या, जरा से देखो तो इन्होंने क्या कर दिया है। So let me start the second period, second turn, second class of the conic section. I can say second period for the parabola, but I shall take first, second, third, fourth, fifth maybe of the conic section. This is the second. My dear boys, girls, look here. Here the question is, yes, yes, more the question I wanted. Find the equation of the parabola whose focus is 1 minus 1 and whose vertex is 2 1. Whose vertex?
यानी वर्टेक्स दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है, वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला फॉर गेटिंग द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला. One thing of course, nothing I am getting here. तो बेटा अगर आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच. अगर पैरेलल टू y एक्सिस हो तो हम ये कर सकते थे. कैसे सर पता चलता कि ये पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस है? जब m 0 होगा तो पैरेलल टू x एक्सिस, अगर m इंफिनिटी होगा तो पैरेलल टू y एक्सिस. यानी जब y वैल्यू 1 होगा, फोकस देखिए यहां पर y वैल्यू और यहां पर y वैल्यू नहीं इक्वल है. चलिए x वैल्यू देख लें, ये भी नहीं इक्वल है. इट मींस फॉर दिस इक्वेशन पैराबोला एक्सिस इज नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर पैरेलल टू y एक्सिस. इसका मतलब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम अपना पुराना फॉर्मूला जो पहले टाइम में, फर्स्ट टाइम में मैं बताया, पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर, यानी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, दैट शुड बी इक्वल, या पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर. एस इज गिवन हियर. बहुत अच्छा. ए इज given but I am not presently need. Had it been directrix, अगर यहां डायरेक्ट्रिक्स होता तो हम P को मानते एक्स वाई. I wanted to rub it now और बहुत क्लियर करूंगा मैं. देखिए अगर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है यानी m 0 नहीं है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 नहीं 0 है, या y वैल्यू सेम नहीं है. पैरेलल टू y एक्सिस यहां x वैल्यू सेम होना चाहिए, या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 शुड बी इंफिनिटी. वो भी नहीं है. तो एक ही रास्ता है, तब हम चलें इक्वेशन ऑफ द पैराबोला पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर. हियर इज द पैराबोला, हियर इज द एक्सिस, here the axis, here the s, here the s, here the vertex, and here the directrix. So you wanted ps square equal to pm square. A is given here. A is given here, that is 2 1. लेकिन हम डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे? बड़ा काम है डायरेक्ट्रिक्स निकालना. तो एक दिमाग में आया, वही क्वेश्चन उन्होंने भी किया होगा आई एम श्योर. बिफोर दैट मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर s है, s इज ऑल्सो गिवन हियर 1 माइनस 1, फोकस इज 1 माइनस 1. तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं इसको निकाल दे रहा हूं. मैं इस वैल्यू को निकाल दे रहा हूं. यही सेम किया है उसने, देखिए. हाँ, इन फिगर A इज द मिड पॉइंट ऑफ ZS. ZS इज हियर. जरा यार ये जरा सा तिरछा हो गया है. आई एम अगेन मेकिंग, क्या करें कंजूस, क्यों कंजूसी करें, इसको मिटा इस लाइन को. ये हाँ, अब थोड़ा सा ये बढ़िया से हम, हाँ, ये P और हियर Z. अब आप जानते हैं AS इक्वल टू AZ. आप पहले से पता है, आपको पहले से पता है यह A था और यहां पर भी AS A था. दिख भले न रहा हो फिगर से, वो फिगर की हमारे बनाने में गलती है, लेकिन आप देख रहे हैं AS इक्वल टू AZ. तो मैं मेरे बच्चों, मैं ये देख रहा हूं अगर ये है, इसको मैं XY मान ले रहा हूं. फिर A इज द मिड पॉइंट ऑफ ZS, यानी 2 इक्वल टू x प्लस 1/2, 1 इक्वल टू y माइनस 1/2, XY आएगा, यानी ये पॉइंट आएगा Z.
क्यों सर इतना आप क्यों कर रहे हैं, जेड को निकालने का आपका मतलब क्या? मेरा बेटा मैं चाह रहा हूं ना, मैं चाह रहा हूं कि यहां पर इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ जाए। डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन के लिए मैं बेचैन हूं। अगर डायरेक्ट्रिक्स आ गया तो पी एस तो है ही है, पी तो एक्स वाई है, हियर दिस पी इज एक्स वाई। सो वाई यहां पर ये निकाल लेंगे डिस्टेंस, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, लेकिन है ही नहीं, यहां देखिए ना, है ही नहीं डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। तो लेकर के आया, यहां से इसको मिड पॉइंट बनाया, और तब कहा इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स पासिंग थ्रू जेड, जो अभी आप पाएंगे, बट परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, यानी m1 m2 इक्वल टू -1, वो m हम इसको दे देंगे, खुश हो जाएंगे कि हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकल गया। आप यहां बल्कि देख लीजिए, उसने यही किया होगा। हाँ, ये देखिए, हाँ, द मिड पॉइंट ऑफ JS इक्वल टू अल्फा बीटा मान लिए हैं वो, उसको मैंने, हाँ ठीक ही, एक्स वाई हमारे पास है, तो मैं इसको अल्फा, इन्होंने अल्फा बीटा, और सही भी है अल्फा बीटा मानना, क्योंकि एक्स वाई तो हमारे पास था। तो कह रहे हैं अल्फा प्लस 1/2 बीटा माइनस 1/2 अल्फा, हाँ लिखिए, अल्फा प्लस 1/2 बीटा माइनस 1/2। क्यों कर रहे हैं? मिड पॉइंट फार्मूला, अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, जेड का कोऑर्डिनेट निकल गया। नाउ स्लोप ऑफ जेड एस, अब निकालना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ जेड एस, तो क्या करेंगे कि y माइनस y1, यानी कहेंगे y जेड एस यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ जेड, तो कहेंगे y-3, आगे कहेंगे y-3 इक्वल टू m x-3। वो m क्या है? जेड के परपेंडिकुलर है, यानी अगर स्लोप जेड का 2 है तो -½ लिखेंगे। नेक्स्ट, देखिए वही करेंगे, श्योर श्योर श्योर, या देखो अब उसके बाद से डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। हमको एक सुविधा इससे ये हो जाती है कि मुझे करना कम पड़ता है। लुक हियर, y-y1 इक्वल टू m आया था 2, -½ किया, x-3 सॉल्व किया, और उसके बाद मेरे बच्चों ये डायरेक्ट्रिक्स निकल गया। ये डायरेक्ट्रिक्स है। अब डायरेक्ट्रिक्स निकल गया, s है, पॉइंट p वेरिएबल है, श्योर है, PS² इक्वल टू PM², PM² यानी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस x प्लस 2i माइनस 1/1² प्लस 2²। मैं रहता, या मेरा जैसा कहना है, अगर ये पहले ही स्क्वायर कर देते तो ये अंडर रूट वगैरह की चिंता नहीं रहती। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला आ गया। यानी अच्छा क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे सर ये बड़ा घुमाऊ है, हम कब करें, किसको कब क्या करें? भाई अगर आपको एक्सिस पैरेलल हो गया मेरे बच्चों, आपको कोई समस्या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला, अगर जो एस और वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन जो है उसका m0 हो गया, तो आप कहेंगे सर डायरेक्ट आ जाइए, y-k² इक्वल टू 4ax-। अगर आपका वर्टेक्स और फोकस का m∞ आ गया तो आप इससे करिए। परेशानी वहां है जहां न तो m0 है वर्टेक्स और फोकस को मिलाने वाली लाइन का, और न m∞ है। तब हमें एक ही रास्ता याद रखेगा, PS² इक्वल टू PM²। लेकिन PS² अगर सीधा सीधा दे दे कि डायरेक्ट्रिक्स ये है और फोकस ये है, फाइंड द इक्वेशन, तो PS² इक्वल टू PM² करेंगे। लेकिन वो दे नहीं रहा है। वो दे क्या रहा है? वर्टेक्स दे दिया, फोकस दे दिया। हमारे बच्चे या हमने क्या किया कि देन वी केम टू नो जेड पॉइंट। फिर जेड पॉइंट निकाला तो कहा कि इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स निकालिए। ये तो हम जानते हैं y माइनस बीटा इक्वल टू एम एक्स माइनस अल्फा, अल्फा बीटा 3 था, सो हम गए y-3 इक्वल टू एम एक्स माइनस 3। लेकिन m क्या होगा? m इज पर, देन दिस लाइन डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू as, तो as का हमने m निकाला, वो आया 2। उसके बाद से हमने क्या कर दिया? यस, कि देन वी फाइंड
माइनस हाफ परपेंडिकुलर यानी -1/m और निकाल लिया इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, y माइनस के, ये तो बता चुका हूं हमारे बच्चे। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला एज वर्टेक्स एंड एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये बता चुका हूं, लिख चुका हूं। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट 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 ये भी बता चुका हूं, वहाँ लिख चुका हूं। हाँ, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हेन एक्स इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी मैंने लिख लिया है। नहीं लिखा क्या? जनरल इक्वेशन, अच्छा लिखा नहीं, केवल वो काम बताया। ये मैं जरा बताऊं, उसको ज़्यादा अच्छा समझना। आप क्या करना, ये कितना इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस में वाई स्क्वायर होता है पैरेलल टू, तो वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स, शायद ये अच्छा लगेगा आपको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कोई झंझट नहीं, उसमें वाई स्क्वायर होता है तो वाई स्क्वायर लिख करके ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। नेक्स्ट में अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इन्होंने किया है, अच्छा ही किया, बहुत अच्छा किया है, लेकिन मेरे लिए वो अच्छा है। चलो जी नीचे, बस आप डायरेक्ट कहिए, सिंस द इक्वेशन पैराबोला is axis is parallel to x axis, so let the equation of the parabola is y square plus ax plus by plus c equal to 0. Let the equation of the parabola is x square plus ax plus by plus c equal to 0. Next, अब उन्होंने समझाने के लिए क्या, उनका अपना तरीका है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose vertex is 1 1 and focus is 4 1। वो है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन कि वही है, नहीं वो नहीं क्वेश्चन, बट सिमिलर क्वेश्चन। आई शैल नॉट डू इट। देखिए, वर्टेक्स दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है, आप क्या करेंगे? देखिए, नहीं ये तो बहुत मजेदार दिया, ये वो क्वेश्चन नहीं है। अरे मैं कह रहा था अच्छा ही है, ये तो बहुत अच्छा आसान सा क्वेश्चन, सस्ता सा क्वेश्चन दे दिया हमारे लिए। लुक हियर, मैं समझता था कि m0 नहीं है, पिछले क्वेश्चन तरीका है, लेकिन नहीं, ये तो बहुत आसान कर दिया। देखना, वर्टेक्स दिया बेटा, ए दिया 1 1, एस दिया, यस एस इज गिवन 4 1 4 1। तो मैं कह रहा था ना, अगर एस पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, यानी m0 हो, देखो y सेम, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज 0। हियर m equal to 0, so as parallel to x axis. What will be the equation? y minus k whole square equal to 4ax minus h. डायरेक्ट पहला वाला लिखा भी हूं, इफ द एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y minus k whole square equal to 4ax minus h. What is hk? What is hk here? Yes, what is hk? Then it is given a is 1 1 and s is 4 1. Yes, now y minus k whole square equal to 4ax minus h. What is a? सुनो तो, what is a here? What is a here? बताओ ना, आप लोग कुछ कोशिश करके बताओ। मुझे फिर मत तंग करना, मैं इसके ऊपर नहीं भिड़ रहा हूं क्योंकि इनके अपने तरीके दूसरे हो सकते हैं। लेट मी सी हियर द पैराबोला, छोटू सा बना दे रहा हूं। दिस इज ए, दिस इज एस, दिस इज ए। याद आ रहा है जब हमने y स्क्वायर इक्वल टू 4ax किया था तो a था, a इज द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, a the distance between vertex and focus. So what is a here? y2 minus y1 upon x2 minus x1, जो डिस्टेंस फॉर्मूला कर रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू 3।
अरे देखो ना, या तो डिस्टेंस या तो मेरे पास सबसे अच्छा मेथड है वो, इसको यदि वाई वाई हो तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर एक्स सेम हो तो दूसरा वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, और ये देखो हमेशा एस से एक ही डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करो, 1 - 1 = 0, 4 - 1 = 3। मैंने ऐसे कर दिया है फास्ट करने को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने को। अब बेटा ये 3 हो गया। एंड व्हाट इज वर्टेक्स? व्हाट इज वर्टेक्स हियर? 1 1 एंड 4 1। तो यही एच के मैंने माना है, ये एच के। इफ द वर्टेक्स इज एच के, देन y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax - h। कितना सिंपल। y माइनस, सो इक्वेशन इज, मैं अभी थोड़ा और आपको बता दूंगा, इक्वेशन इज y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 × 3 x माइनस। आंसर। तो क्या मुझे यहां लिख देना था क्या? व्हेन वर्टेक्स इज एच के। कितना सिंपल इन्होंने किया होगा। आई अप्रिशिएट इट। हाँ हाँ हाँ, ये आ गया यहां पर। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज y - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 × 3 x - 1। गेट द क्वेश्चन। प्रोवाइडेड m इज 0, तब तो राजा हैं आप। जरा देखें दूसरा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुच फोकस इज 1 2, एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन, एंड टेंजेंट एट द वर्टेक्स इज x + y - 1 = 0। मैं पूरा नहीं करूंगा, लेकिन आपको पूरा समझा करके और जो इन्होंने किया होगा इसको दिखला दूंगा। लेकिन हम बच्चों को अब इसको हटा करके जरा सा मैं फिर से अपने बच्चों को बिल्कुल ठीक, यानी ये अच्छे क्वेश्चंस हैं पैराबोला के, बहुत दमदार, बहुत दमदार। लेकिन देखूं तो कह रहा है find the equation of the parabola whose focus is 1 2 and tangent x + y - 1 1 2। look here, I am making the parabola here the focus is 1 2। क्या दिक्कत है? वो फोकस s a नहीं दिया हुआ है, मत दे। यहां डायरेक्ट्रिक्स है, वो भी नहीं दिया हुआ है, केवल एक हेल्प कर रहा है और कह रहा है कि टेंजेंट ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज 1 2 एंड टेंजेंट एट द वर्टेक्स, यानी ये लाइन आ जा भाई सीधे। गुड, दिस इज द टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये है 1 1 ना, यहां शायद 1 1 ही दिया, नहीं दिया क्या? whose focus is there on tangent at the vertex, नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ है। अच्छा ही किया भाई। अब देखो बच्चों, हम बस ये दे दिया है इसका इक्वेशन दे दिया है x + y, टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है कि x + y - 1 = 0, यानी ये जो टेंजेंट का इक्वेशन है ये कह रहा है x + y - 1 = 0। इतना टेंजेंट दिया, फोकस दिया, माने मेरे पास न तो पैरेलल टू x एक्सिस न पैरेलल टू y एक्सिस, जिसमें हम खुश थे कि या तो y - k होल स्क्वायर = 4ax - h, या x - h होल स्क्वायर = 4ay - k। कुछ नहीं दिया जी, एक टेंजेंट का इक्वेशन दे दिया और फोकस का कोऑर्डिनेट्स दे दिया। अब हम लोग होशियार, जब कोई रास्ता नहीं है तो हमारे पास, आपको बताया हूं कि आप क्या करेंगे कि PS² = PM², ये करेंगे। P का कोऑर्डिनेट आप जानते हैं, हम XY मान लेते हैं, चलेगा। PS² हो जाएगा x - 1 होल स्क्वायर + y - 2 होल स्क्वायर। लेकिन PM कैसे करेंगे जब तक डायरेक्ट्रिक्स नहीं मिलेगा? ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो कहेंगे एक बात है कि ये डायरेक्ट्रिक्स
पैरेलल टू टेंजेंट लाइन, दिस टेंजेंट लाइन पैरेलल है। अरे यार कुछ तो रास्ता मिला। दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। सो यहां पर कह सकता हूं x प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा। भाई इतना तो हमको मेहनत करने दीजिए, आप मुझको मतलब मुझको हेल्प करिए। एनी लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई इक्वल टू लैम्डा। तो x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा। लेकिन भाई हम किसको करें, हम कहां से करें कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट z आ जाए और इक्वेशन आ जाए। अभी देख लीजिए, आप बताइए कि कैसे करें, नहीं तो मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा। ऐसे ही हमने क्वेश्चन किया है। यस, क्या हम a मिल सकता है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्या मैं a कहीं से आ सकता हूं? आपको आइडिया दे रहा हूं। मैं कहूंगा इक्वेशन ऑफ द लाइन AS इज y माइनस 2 इक्वल टू m x माइनस 1। ये तो कहेंगे आप, तो इससे नाराज नहीं होंगे। इक्वेशन ऑफ AS 1 पॉइंट फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस 2 इक्वल टू m x माइनस x1। और ये लाइन परपेंडिकुलर टू x भाग रहा था यार, ये ऐसा चोरी से भाग रहा था। ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तब कहेंगे सर इसका m निकालिए, उसको उलट करके इसमें रख दीजिए। सो m इज, इसका m क्या है, इसका m माइनस 1। अरे कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, तो उसका m क्या होगा, माइनस 1 अपॉन m है। तो ये माइनस है तो वो भी 1 हो जाएगा। अरे भाई इसका m क्या है, m1 मान लीजिए आप, m1 इज हियर, दैट इज माइनस 1 कोफिशिएंट ऑफ, तो m, तो उसका m क्या होगा, तो m क्या होगा, यस दैट इज, उसको उलट दें यानी और साइन बदलें, तो माइनस इंटू माइनस 1 अपॉन 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1। बड़ी राहत मिली बेटा हमको। अब आ गया m पॉइंट का इक्वेशन, m पॉइंट का की वैल्यू, एंड देयरफॉर दिस टेंजेंट लाइन इज गिवन। तो ये डायरेक्ट्रिक्स मिल गया। हम इसको 1 को करते हैं तो डायरेक्ट्रिक्स, अभी काम खत्म नहीं हुआ। डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू y माइनस 2 इक्वल टू 1x माइनस 1, यानी x माइनस 1 माइनस y, यानी y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 1, दैट इज x माइनस y, x माइनस वाई इक्वल टू या प्लस 1 इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स, ओ हो, डायरेक्ट्रिक्स निकल गया। तो हम जिसकी तलाश में थे ना, और जब उसकी तलाश में थे तो पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर कर लेंगे, यानी पी एक्स वाई से डिस्टेंस एस की और एक्स वाई से डिस्टेंस, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बच्चों हमारा इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन हम लोग किए का कहाँ पर, ये देखो टेंजेंट दे रहा था, ये फोकस दे रहा था, हम परेशान थे कि भाई यहां कैसे पहुंचेंगे। तब तक मेरे दिमाग में आया कि पहले तो इस लाइन का इक्वेशन 1 2 के थ्रू करो और परपेंडिकुलर तो इसके करो, तो इसलिए ये आ जाएगा। इस तरह से आइए इसको देखता हूं कि इसने ना कम टू द क्वेश्चन, इसको करें। अब हमें करने से जरा सा राहत मिल गई। हाँ देखो x माइनस वाई 22 ऊपर होगा भी, शायद कुछ और किया होगा क्या,
हाँ नहीं, हियर, हाँ कर ही रहा है, हाँ ये देखना, और आगे, हाँ फोकस कह रहा है 1 2 एंड ए बी द फोकस एंड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, स्लोप ऑफ द लाइन इज हियर -1, वही कह रहा था मैं -1, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इज -1, ओके। देन स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन बी 1, वो भी मैंने बताया अभी आपको, अरे -1/1 कर दिया। इक्वेशन ऑफ द एक्सिस पासिंग थ्रू 1 2 विथ स्लोप इज y -2 इक्वल टू 1x -1, जब ये आ जाएगा, जरूरत नहीं थी, एनीवे चलिए अब वहां पर हमने बाय सॉल्विंग द टू इक्वेशंस x इक्वल टू 0 y इक्वल, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स 0 1, अब 0 1 हो गया, यहां पर अल्फा बीटा निकाला उन्होंने अपने ढंग से, क्या अच्छा किया, और उसके बाद से हमें बाद में लास्ट में देखो चलो, हाँ coordinates of z is -1, equation of the directrix of the parabola is here, yes here, and then and x plus y and then x plus y, हाँ यहां पर आ गया, और तब उसके बाद sp स्क्वायर इक्वल टू pm स्क्वायर, सो पैराबोला इक्वल टू 1, अरे दुनिया भर का समझा रहा है, बस डिस्टेंस फार्मूले से वी आर गेटिंग द रिजल्ट। यानी कैसे भी हम लोग पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स निकालें, पैराबोला का फोकस प्राप्त कर लें, नहीं दिया है तो निकालें, दिया है तो खुश रहें, और ऐसा करके पी एस स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर फार्मूले से हम लोग निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। यस सर, द नेक्स्ट, क्यों हम लोग, अच्छा, find the equation, find the equation of the parabola whose axis is upward, axis is upward यानी y axis के पैरेलल होगा, whose axis is upward, तो मैंने वहां पर लिखवा है, वो तो मिटा दिया, बट यू नो इट मस्ट बी obtained from here, equation of the, मैं लिख दे रहा हूं, equation of, या लिखा कि जनरल इक्वेशन ऐसा कर दिया था, of the parabola parallel to y axis, that is x square, याद करिए कुछ मैंने लिखा था ऐसा, मैंने कहा कि मेरी तरह से लिखो, यहां पर थोड़ा दूसरे ढंग से लिखा था, ये है इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। कैसे सर आपने समझ लिया कि पैरेलल टू एक्सिस है? अरे यार वो कह रहा है एक्सिस इज, ये देखिए एक्सिस इज अपवर्ड, यानी y की ओर है, इसलिए वो पैरेलल टू y एक्सिस है। सो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज, जनरल इक्वेशन हम क्या मान सकते हैं, बहुत सुंदर मैंने इसको बनाया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, बट इट पासेस थ्रू हाउ मेनी पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 0 0 3 0। क्यों इसने 3 पॉइंट दिया? क्योंकि हमारे पास 3 अननोन्स हैं, A, B and C. We shall let the equation pass through 0 0 3 0 and -4. We shall be getting 3 equations. We shall be solving by your 10th class method. Eliminate C, you getting A, B. Then find from that A, B, you eliminate B, find A, and that way you can find A, B, C. Here you are getting the 3 equations. Look here. Yes, go ahead sir. ये देखिए सब मिला हुआ है, इधर मिला हुआ है, वही सब a इक्वल टू 1। चलिए इसने कैपिटल ए लिया है, हमने स्मॉल ए लिखा है। देन नेक्स्ट ये b मिल गया और यहाँ पर c मिल गया होगा पहले, और इस तरह से a b c रख दिया, इक्वेशन हो गया x स्क्वायर -3x -y। c शायद 0 आ गया होगा, इसका c इसका 0 आ गया होगा, तो a है -3 और b है -1, c 0 आया होगा बीच में, हम उठा दिए हैं, एंड दैट इज द इक्वेशन। देन नेक्स्ट, और ये ऐसी यही क्वेश्चन था कि पिछला दूसरा था। हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जनरल इक्वेशन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, that is yes parallel to x axis,
अब उसमें क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो वाई स्क्वायर प्लस ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्यों सर इसमें आपने ये माना? बिकॉज हियर एक्सिस वाज अपवर्ड, हियर द एक्सिस वाज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बट इट आल्सो पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। क्या करूंगा? लेट द इक्वेशन शुड बी सब्स्टिट्यूट देयर and you will find 3 equations in terms of a b c, and after solving all those 3 equations you will be finding a b c, and then you will be putting here a b c and your equation is there. लेकिन हमें ये ज्यादा समझना है, अरे इसने कहा था इस क्वेश्चन में कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लुक हियर, है ना, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन y स्क्वायर प्लस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू पैरेलल टू y एक्सिस, अपवर्ड था पहले वाले क्वेश्चन में, सो x स्क्वायर प्लस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, राइट? देन सिंस दिस इक्वेशन, द सेकंड इक्वेशन, आई मीन सेकंड इक्वेशन, दिस वन, ये पास कर रहा है 3 पॉइंट से, गिवन 3 पॉइंट से सब्स्टिट्यूट किया, सेटिस्फाई किया, आई मीन, एंड सॉल्विंग द ऑल दोस 3 इक्वेशंस, and then we are getting ABC and equation of the parabola. Here it is next. वो आ गया साहब, ये सब इतनी मेहनत किया वो आपको भी करना पड़ेगा, ऐसा जैसे हम बोल रहे हैं वो नहीं होगा। एंड हाँ, पहले C0 था, आपकी बार -10 है, और तब देख लीजिए 5y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 21y प्लस 20 इक्वल टू 0, 21 इक्वल टू 0, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। नेक्स्ट, ये तो बहुत क्या करा, फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ओहो, अरे इसको ही बता ही दूं, 1-2 क्वेश्चन, पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का ही देता है, इसलिए x इक्वल टू a2 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280, ये पैरामीटर है, बहुत कम चर्चा आता है लेकिन जानना चाहिए। x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280, क्योंकि अगर मान लो ये सेटिस्फाई, तो कहेंगे कैसे, आपको पता चला, इट हैज बीन गिवन, इट हैज बीन डिराइव्ड, बट बिफोर दैट अगर मान लो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो सेटिस्फाई हो जाएगा। ये 4 स्क्वायर टी स्क्वायर, वाई के जगह पर रखो 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, और x की जगह पर 80 स्क्वायर रखो, तो वो भी से हियर 4a स्क्वायर टी स्क्वायर एंड हियर यस इक्वल टू, देखो 4a इज हियर, दैट इज द डिस्टेंस, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, तो रियली बोथ आर इक्वल, अरे दैट इज 4a square t square, this is also 4a square t square. So this justifies that equation of the parametric form of the parabola. We always take x equal to 80 square, y equal to 280. इस पर कुछ questions दे रहे होंगे, इस पर कुछ questions दे रहे होंगे। I come here, हाँ, यही नहीं, हाँ, come down, हाँ, देखिए कह रहा है फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। क्या बात है यार, y स्क्वायर इक्वल टू 6x, y स्क्वायर इक्वल टू, y की जगह पर हम ये रख देंगे, है ना, y देखो हियर x इक्वल टू 80 स्क्वायर, यहाँ हाँ, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, और यहाँ पर a क्या है, हियर a, अरे 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, याद आ रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, 4a की जगह पर क्या है 6, सो a इक्वल टू 3/2, तो क्या हो जाएगा, x इज 3/2 t स्क्वायर, x इक्वल टू a की जगह पर भरना है बस केवल 3/2 t स्क्वायर, y इक्वल टू 2 इंटू 3/2 t यानी 3t। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 1, हियर व्हाट इज a, ये 4ax यानी व्हाट इज a यार 1,
इसलिए वहां पर कह रहा है ए। देन पैरामीट्रिक इक्वेशन, अब वहां पर वो आपको बताया हूं, जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनेगा, यानी ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, कैपिटल वाई स्क्वायर, आपको याद होगा हम y माइनस वन के यहाँ पर, मैंने जो उधर है जो y के शक्ल में नहीं, उसको कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 कैपिटल x और a इक्वल टू 1, बेटा तो कह रहा है x प्लस 1 इक्वल टू 80 स्क्वायर। पहले x था, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, लेकिन वो यहां पर क्या हुआ, कैपिटल x दे दिया, इसलिए कैपिटल x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड कैपिटल y इक्वल टू 280। लेकिन फिर वो इतना नहीं मेहनत करना चाहता है, कह रहा है वो कैपिटल x वाज x प्लस 1, वो कैपिटल y वाज y माइनस 1, इसलिए x इक्वल टू आया ये, y इक्वल टू, एंड दैट इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन।